جی السلام علیکم ویورز، میں ایڈوکیٹ عابد محمود ایک بار پھر آپ سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ آج کی جو ویڈیو ہے، آج کا جو لیکچر ہے، اس کے اندر ہم بات کریں گے لیٹ کے متعلق۔ لیٹ مینز لا ایڈمیشن ٹیسٹ۔ وہ اسٹوڈنٹس جو انٹرمیڈیٹ کا امتحان دینے کے بعد 5 سالہ LLB کے اندر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے جو پنجاب بار کونسل ہے یا پاکستان بار کونسل ہے، انہوں نے یہ رول پاس کیا ہے کہ وہ لیٹ کا ٹیسٹ کلیئر کریں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی انرولمنٹ کسی بھی پرائیویٹ کالج کے اندر یا کسی بھی جو پبلک سیکٹر کالج ہے یا کوئی گورنمنٹ یونیورسٹی ہے، وہ اس کے اندر اپنا ایڈمیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ سو LLB کرنے کے لیے اب جو لیٹ کا ٹیسٹ ہے وہ انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔ سو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو لیٹ کے بارے میں جو بنیادی انفارمیشن ہے وہ پرووائڈ کرنے کی کوشش کروں گا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا، اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو ہے وہ دیکھنے کے بعد، اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد آپ کو لیٹ کے متعلق بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی۔ سو ون بائی ون ہم جو ہے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ لیٹ کا جو ٹیسٹ ہے وہ 100 نمبر کے لیے کنڈکٹ کروایا جاتا ہے۔ 100 نمبر کے اوپر یہ جو ٹیسٹ ہے لیٹ کا وہ بیس کرتا ہے، اور ان 100 نمبرز کو مختلف حصوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک اور بات آپ یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر جو ہے وہ سیلف رائٹنگ پورشن بھی ہوگا اور MCQs بھی ہوں گے۔ اگر ہم MCQs کی بات کریں تو اپروکسیمیٹلی 75 مارکس جو ہیں وہ MCQs کے ذریعے آپ جو ہے وہ گین کر سکتے ہیں، اور 25 مارکس ایسے ہیں جس کے اندر 2 پورشن ہیں۔ ایک آپ کی جو پرسنل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کریں گے، لکھیں گے پیپر کے اندر، اور دوسرا ایک ایسے دیا جاتا ہے، ایک مضمون دیا جاتا ہے جو آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ سو اگر میں بات کروں وہ جو 75 مارکس ہیں وہ کس طریقے سے آئیں گے، تو آپ یاد رکھیے گا پیپر کے اندر مختلف پارٹس ہیں جن میں انگلش جو ہے وہ اس کے متعلق سوال پوچھے جائیں گے، اردو جو ہماری اردو لٹریچر ہے اس میں سے سوال پوچھے جائیں گے، الحمدللہ وی آر مسلمس، سو اسلامیات میں سے سوال پوچھے جائیں گے، پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی تاریخ کے بارے میں، یا جو پاکستان کے اندر جو کرنٹ افیئرز کا پورشن ہے اس کے متعلق سوال پوچھے جائیں گے۔ اس کے بعد میتھس جو جس میں بیسیکلی اینالیٹیکل ریزننگ جو ہوتی ہے وہ والا پورشن جو ہے وہ اس کے متعلق سوال پوچھے جائیں گے۔ سو اور مین جو اس کا امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے، جو میجر پارٹ ہوتا ہے، وہ جنرل نالج کا پارٹ ہوتا ہے۔ سو 20 نمبر جو ہیں وہ جنرل نالج کے ہوں گے۔ جنرل نالج کے اندر آپ کو پتہ ہے میکسیمم جو کرنٹ افیئر کی چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر پوچھی جاتی ہیں۔ جیسے آپ سے فار ایگزامپل پوچھا جا سکتا ہے بھی کسی بھی کنٹری کا آپ کیپٹل بتا دیجئے۔ مثلا جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کا کیپٹل ہے، جو سٹیٹ کا کیپٹل ہے وہ اسلام آباد ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں کچھ پروونسز ہیں، صوبے ہیں، تو صوبوں کا کیپٹل ہے۔ جیسے پنجاب کی بات کریں گے تو اس کا کیپٹل لاہور سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم سندھ کی بات کریں گے تو اس کا کیپٹل کراچی سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں گے تو اس کا کیپٹل پشاور سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم بلوچستان کی بات کریں گے تو اس کا کیپٹل جو ہے وہ کوئٹہ سمجھا جاتا ہے۔ سو کیپٹل کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد کرنٹ افیئر کے اندر جو ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں، جو ہمارے پولیٹیشنز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ مثلا پاکستان کا پرائم منسٹر کون ہے، یا 2013 سے 2018 تک پاکستان کا پرائم منسٹر کون تھا، یا 1973 سے 78 تک پرائم منسٹر کون تھا، یا جب پاکستان بنایا گیا تھا تو سب سے پہلے کون سا جو ڈیزگنیشن ہے، کون سا جو عہدہ ہے وہ تخلیق کیا گیا تھا۔ سو یہ ڈیزگنیشن جو ہیں یہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ کرنٹ افیئر کے اندر، جنرل نالج کے اندر
मतलब आज कल जो सर्कमस्टांसेस हैं वो डेली बेसिस के ऊपर चेंज हो रहे हैं। मसलन अगर हम बात करेंगे चाइना के हवाले से, सो लॉबीज बनती हैं, लॉबीज अपना अपना जो रोल है वो प्ले करती हैं। तो इस टाइम दुनिया के अंदर 3 लॉबीज चल रही हैं, एक चाइना है, एक अमेरिका है, एक रशिया है, रूस जिसे हम बोलते हैं। सो इनके रिलेशंस के जो रिलेशंस के मुनासबत से जो चीज़ें हैं वो तब्दील होती रहती हैं, इसी को हम करंट अफेयर बोलते हैं। डेली बेसिस के ऊपर उनके अंदर कोई ना कोई नई चीज़ ऐड अप हो रही होती है। सो ये हमारा जीके का पोर्शन है, जनरल नॉलेज का पोर्शन है। जनरल नॉलेज के अंदर जो आईक्यू लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा 20 जो एमसीक्यूज हैं वो आपके इंग्लिश, जो मैंने बताया कि इंग्लिश में से पूछे जाएंगे, और वो इंग्लिश कौन सी होती है। मसलन टेंसेस के मुतालिक हमसे सवाल पूछा जाएगा। मतलब टेंस के अंदर ऑब्वियसली 3 टेंसेस हैं, 3 जमाने हैं, उनमें से प्रेजेंट डेफिनेट की कोई एग्जांपल पूछ ली जाएगी, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की कोई एग्जांपल पूछ ली जाएगी। मतलब डिफरेंट चीज़ें टेंसेस के लिहाज से पूछी जा सकती हैं। या आपको कोई इंग्लिश का सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसकी करेक्शन आपसे पूछ ली जाएगी। हैज बीन, हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब जो सेकंड ईयर के अंदर आप करेक्शंस पढ़ते आए हैं। प्रेपोजिशन के मुतालिक आपसे कोई ना कोई सवाल पूछा जा सकता है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स के मुतालिक पूछा जा सकता है, मतलब एक जैसे अल्फाज और उसके जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर स्पेलिंग, जो इंग्लिश के अंदर वोकैबुलरी के अंदर जो हमारे स्पेलिंग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वो पूछ लेते हैं कि लाहौर के स्पेलिंग बताइए। एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, लाहौर के स्पेलिंग बताइए। तो लाहौर के स्पेलिंग आप मतलब उसमें आपके पास 4 ऑप्शंस दी जाती हैं, उनमें से एक होगी जो सही ऑप्शन होगी, जो आपने टिक करनी होगी या सर्कल करनी होगी, या एज पर इंस्ट्रक्शंस जो एग्जामिनर इंस्ट्रक्शन देगा उसके मुताबिक आपको वो करनी पड़ेगी। सो ये हमारा जो है वो इंग्लिश का पोर्शन है। फिर उसके बाद हमारा पोर्शन उर्दू का है। उर्दू के अंदर भी सेम यही स्ट्रक्चर, सेम यही फॉर्मूला अपनाया जाएगा। आपसे उर्दू के अंदर जुमलों की दुरुस्तगी पूछी जा सकती है, आपसे वाहिद जमा पूछे जा सकते हैं, मुज़क्कर मुअन्नस पूछे जा सकते हैं, आपसे अल्फाज मुतजाद पूछे जा सकते हैं, ऑपोजिट जो वर्ड्स होते हैं, अल्फाज मुतरादिफ पूछे जा सकते हैं। सो ये वाला पोर्शन जो है वो उर्दू के अंदर पूछा जाएगा। फिर उसके बाद मैंने बताया पाकिस्तान स्टडीज है, सो पाकिस्तान से मुतालिक सवाल पूछे जाएंगे। पाकिस्तान का एरिया जो है वो पूछा जाएगा। यहाँ एक बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है, चूंकि डेली बेसिस पे मैंने बताया चीज़ें जो हैं वो अपडेट होती रहती हैं, सो हमें भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। आपने अब तक जो है पाकिस्तान का टोटल एरिया जो है वो पड़ा हुआ है 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर, जो कि अब तब्दील हो गया है, और अप्रॉक्सीमेटली वो 8,81,913 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। और जब आप उसकी स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों बढ़ा और कैसे बढ़ा और कब बढ़ा। सो पाकिस्तान स्टडीज के अंदर इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक पूछा जा सकता है, उसका कोई आर्टिकल पूछा जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा जा सकता है, काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स पूछी जा सकती हैं, या रोल ऑफ पार्लियामेंट, मतलब ये एमसीक्यूज बेस्ड सारे क्वेश्चंस होंगे, ये पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो इस्लामियात का पोर्शन आता है। सो इस्लामियात के अंदर आपको पता ही है हमारी बेसिक चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि इस्लामियात की किताब हम ना भी पढ़ें तो फिर भी ये वाला जो पोर्शन है, ये 10 नंबर का पोर्शन, ये हमें पास हमें करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ, मेरा बिलीव है। सो बेसिक चीज़ों के बारे में, आपके अकायद के बारे में पूछा जा सकता है, अरकान के बारे में पूछा जा सकता है, या किसी हदीस के हवाले से कोई सवाल पूछा जा सकता है, कुरान मजीद की किसी आयत के मुतालिक, या जो है वो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री जो है उसके बारे में पूछा जा सकता है, या रोल ऑफ प्रॉफिट्स पूछा जा सकता है। इसमें भी एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद डिफिकल्ट पोर्शन होगा। बेसिक चीजें जो इस्लाम से रिलेटेड हैं वो पूछी जाएंगी। और मैथ्स का भी एज यूजुअल मैंने आपको बताया कि मैथ्स के अंदर जो पोर्शन होता है वो बेसिकली एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन होता है। मसलन हम क्लास 5 के अंदर सवाल पढ़ा करते थे, क्लास 8 के अंदर सवाल पढ़ा करते थे कि एक ट्रेन जो है वो 120 की स्पीड पे जो है वो 1 घंटे
एक घंटे के अंदर 120 किलोमीटर की रफ्तार से जो है वो 50 किलोमीटर तय कर रही है। सो वो स्पीड कम करके या स्पीड बढ़ा के या घंटे बढ़ा के या रफ्तार बढ़ा के तो वो कितने किलोमीटर कर सकती है, ये एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन है। एक बच्चे के पास 12 माल्टे हैं, उसमें से कुछ इस्तेमाल हो गए, कुछ बच गए, प्लस माइनस करके वो इस तरीके से जो एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन है वो आपसे पूछा जा सकता है। सो ये मैथ्स का पोर्शन हो गया। ये एमसीक्यूज का जो पोर्शन है वो मैंने बताया 20 नंबर के इंग्लिश में से सवाल पूछे जाएंगे, 20 नंबर के जनरल नॉलेज में से सवाल पूछे जाएंगे, 10 नंबर उर्दू के होंगे, 10 इस्लामियात के होंगे, 10 पाकिस्तान स्टडीज के होंगे, 5 नंबर आपके जो एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन, मैथ का जो पोर्शन है उसके होंगे। और फिर उसके बाद 25 नंबर 2 हिस्सों पर डिवाइड होते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट होती है। पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर जो है वो एक बात का ख्याल रखिएगा कि पर्सनल स्टेटमेंट का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि आप बताएंगे जी मेरा नाम जो है वो अली अहमद है, मेरे फादर का नाम ये है, मेरी इतनी उम्र है, मैं फलां जगह से ताल्लुक रखता हूं और मेरी ये क्वालिफिकेशन है। इट डजंट मीन पर्सनल स्टेटमेंट। इसका मतलब हरगिज पर्सनल स्टेटमेंट नहीं होता। पर्सनल स्टेटमेंट का मतलब बेसिकली वो आपके व्यूज जानना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो आपको टॉपिक दे देता है कि आप ये बताइए कि आप क्या समझते हैं मोबाइल फोन लोगों के लिए फायदेमंद है या नुकसान का बायस है। अब इसमें आप देखिए कि ये तो कहीं नहीं पूछा गया कि आपके वालिद का नाम क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। पूछा क्या गया है, पूछा आपसे ये गया है कि आपकी राय क्या है। सो आप बताइए मेरा नाम आबिद महमूद है और मेरी राय के मुताबिक मोबाइल फोन जो है वो फायदेमंद है, और वो क्यों फायदेमंद है उसकी आपने लॉजिक पेश करनी है। और एक बात याद रखिएगा, ये जो लॉजिक आपने लिखनी है ये एक ही पैराग्राफ के अंदर लिखनी है। इसके अंदर आपने पैराग्राफ नहीं बनाने, स्टार्ट करना है और उसके बाद फिर उसको एंड करना है। वो एक शीट आपको मिलेगी, उसके ऊपर आपने ये लिखना होता है। दूसरा जो पोर्शन इन 25 मार्क्स के अंदर है वो ऐसे है। ऐसे के मुतालिक भी वो आपको टॉपिक दे देगा कि इस टॉपिक के बारे में आप ऐसे लिखिए। यहाँ आपके पास ना ये पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर और ऐसे के अंदर एक ऑप्शन होती है कि आप उर्दू मीडियम मेथड जो है वो चूज करना चाहें या आप इंग्लिश मीडियम मेथड जो है वो चूज करना चाहें। सो ये आपकी अपनी मर्जी होती है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो चूज कर सकते हैं। बेहतर ये है कि वो वाला पोर्शन जिसके अंदर आपके पास कंटेंट ज्यादा हो और बड़ा यूनिक कंटेंट हो, बड़ा अच्छा मटेरियल आपके पास हो, जो आप जो है वो लिख सकते हो, बड़ा ऑथेंटिक हो, एग्जामिनर उसको पढ़े, उसको लगे कि यार ये जो बच्चा पर्सनल स्टेटमेंट लिख रहा है या ऐसे लिख रहा है इसका मवाद बहुत अच्छा है। वो मतलब को बचपन वाली बातें ना हो, को 5वीं क्लास या 8वीं क्लास वाला मजमून ना लिख के आए। और एक और बात मैं आपको बता दूं, ये मैट्रिक के मज़ामीन जैसा नहीं होता, ना ये इंटरमीडिएट के मज़ामीन जैसा होता है। ऑब्वियसली लॉ का टेस्ट हो रहा है तो उस हिसाब से आपने जो कंटेंट है आपका वो चूज करना होता है। सो मैं उम्मीद करता हूं ये जितनी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, ये जो इसका तरीकाकार मैंने आपको बताया है, उससे आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन जो है वो दूर होगी। इंशाल्लाह आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर मैं पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में भी आपको गाइड करूंगा और जो ऐसे राइटिंग है लैट के लिए जो ऐसे लिखा जाता है उसके बारे में भी आपको गाइड करूंगा। सो आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ ताकि आप तक ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो वक्तन फवक्तन और बर वक्त पहुंचती रहे। अपना बहुत सारा